नमो वज्राय सवसाहुणम् ऐसो पंच नमोकारो सर्वपावपणासनं मंगलार्णं च सर्वेस्तिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्. भंडारी सर, आप इनॉग्रल स्पीच देंगे? हाँ बस शुरू कर रहे हैं, पर लोग आ रहे हैं तो मैंने कहा 1 मिनट और रुक जाते हैं. हाँ ठीक है. कमनी जी भी आ गए. वंदा भी वंदना भी समझ समणी जी वंदा भी हाँ लगभग 230 करीबन एप्लीकेशंस आ चुकी, 40 के करीबन. बहुत अच्छा रेस्पॉन्स. हाँ, but only 10% attendance so far. वैसा तो होता है सर. नहीं, मैं वो कच्छरा सबसे एक्चुअल में बात कर रही थी. ओके. हाँ. अभी वो साइंस एंड जैन फिलोसफी का कोर्स ऑफर किया है, सो कम्युनिटी के लिए, तो उसमें 250 अराउंड एप्लीकेशंस आए हैं ऑल ओवर वर्ल्ड. Yes, very nice. My response is very good, but there are so many things going on that I think people have to make a choice. Yeah. Because 24 hours is the limitation. I think Yeah. you cannot go beyond that. पैरेलल चल रहे हैं, 2-3 सेशन और भी चल रहे हैं पैरेलल, जैसे जीतू भाई जी का भी चल रहा है. हाँ. So I was going to ask whether we should have the whole thing in Hindi or English or mixed. मिक्स विल बी प्रेफरेबल सर. डिफरेंट क्राउड है, उसके बावजूद भी समृद्धि जैसे पसंद करें. Okay, so my slides are in English, so might be if somebody is not following anything in Hindi, or then they can see the slides, but most of the people I think they are Hindi speaking. Yes, most of the crowd is Hindi speaking. So we'll have more emphasis on Hindi. Yes. But we'll interject English also in between, because Hindi has better equivalent words in Prakrit than English has. And if you want to convey the true bhavarth, then I think we have to resort to Hindi only. Anyway, I think it is now 8:05. Yeah. And we have about 30 people here, so that is good to start with. By the time, this is our first inaugural session. So on behalf of Jain Academy of Scholars and Science and Spirituality Research Institute, I welcome you all, especially the speaker, our Pujya Samniji Chaitanya Pragyaji. She is an expert on many things, including agams and science and all related aspects. And I also welcome our senior colleagues, Kachara Saab, Dr. Bipin Doshi, and many others are there. I don't have them on the screen, but and many new enthusiasts have joined. So I would like to take just a couple of minutes saying that you see, JAS, the Jain Academy of Scholars, has over 50 experts all around the world, very renowned and very highly academic credentials everybody has. And this is, I think, one of the best groups in the world as far as Jain philosophy is concerned. So we are very proud to have all these people associated with the Jain Academy of Scholars. And we have Science and Spirituality Research Institute, which was established about 5 years ago to bring resonance of science with
spirituality in general and Jainism in particular. Now, normally we don't conduct these study of agams actually because people spend lifetime studying agams. We ourselves have a lecture series on Samaysar which is going on for 2 years. So I requested Samniji whether there is some agam which we want to have quick understanding of basic aspects of basic concepts of Jain philosophy, Jain darshan. So I asked Samiji, is there one agam we can quickly go through because she is so knowledgeable and she has studied this. And she is actually my guru. She taught us about Atma. She took 2 months classes here, and I was very impressed because it is like a super concentrated dose she gave. We learned lots of things in that 2 months period, which is really impossible. So this is as a very special case. We have this Pannavana Sutra because Samniji recommended this. We start with Bhagavati Sutra. It has 36,000 questions and one can go on studying them and analyzing them. But I think Pannavana Sutra has all the basics. And on our request, I am very grateful to Samniji that she has agreed. So we start this first inaugural session today. I would like to introduce a few people who are our learned scholars here. One is Dr. Surendra Singh Pokharna. He is actually the backbone of both these establishments here. Dr. Vinay Jain has just joined, and so many more are there. You will get to know. But I am. This is more directed towards younger people. They want a concentrated dose of agams in a short period and learn all the basics. I think this is it. What I learned by discussion with Samniji, and she can correct me if I'm right, that Shruta Gyan and Keval Gyan both are Gyans in their own right. Only their methodology is different. Shruta Gyan we learn by studying and listening and reading and by science and all this. Well, Keval Gyan is what is by meditation and so on. So, but the goal of both these Gyans are same and they are equivalent. And so we have this excellent session organized for all of us. I think many more people will join. So this, I request you to attend this regularly. And today, of course, the first day, so we are little lax, but we'll start right sharp at 8 o'clock every week on this Thursday. And I just want to mention one small thing that we have many other activities. We have lectures in JAS, lectures on very important topics where scholars discuss between themselves different interpretations and trying to bring in consonance with scientific thinking. We have weekly lectures on Tuesdays mostly. We also have round table meetings. You are all welcome. It is open to all, but if you want to become regular, then you can become member or fellow or as per your requirement. And in parallel, we are also starting a course on basic science. I think we cannot study agams in isolation, and it has to be made relevant for today's lifestyle, for today's thinking, and today's logic, today's scientific arguments, and all this. So, in parallel, we are starting our three renowned people. I mean, Professor Pokharna and Dr. Ashok Jain. They have started. They will take these classes. It will start in about 2 weeks' time. A basic science which everybody must know. You can't really fully understand
agams, scriptures, or any religion for that matter, without having basic understanding of science and scientific logic. So I invite you all to take whatever course you like. This is free and open to everybody. So with these few words, I just want to end by saying that there are few people who have worked very hard on this organizing this thing, this program. One is Mrs. Ashesha Parikh, who is the convener of this. She is responsible for everything, and she has kindly agreed to make notes. We have Purvi Dave here, who will uh, also keep a track of all what is going on and organize it. We have our manager Udayan Makwana, and we have Jalpa, who will also help in organizing this. So we have a very good team, and the team has worked very hard. And of course, we all together can try to understand from Samniji. It is up to us to extract how much gyan we can take from her. She's a storehouse of knowledge, and she is currently at Florida State University. And now I'll request Dr. Pokharna to take over and introduce the course and the speakers. Sir, sir, just a minute. Sir, Yes. प्लीज मैं co-host तो प्रज्ञा जी, समनी जी को co-host बना दीजिए. अच्छा. You, yes. भंडारी साहब बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you very much. Before I start the formal introduction of the program, मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूँ कि डॉक्टर नरेंद्र भंडारी साहब जो हमारे अध्यक्ष हैं जैन एकेडमी ऑफ स्कॉलर के, उनको अभी 3-4 दिन पहले ही एक बहुत बड़ा सम्मान मिला है. एक जोधपुर का एक संगठन है, वो आचार्य हस्तीमल जी महाराज साहब की याद में है, तो उनको ये सम्मान दिया गया. आचार्य श्री हस्तीमल डॉक्टर हस्ती स्मृति सम्मान. तो उनकी विद्वत्ता को देखते हुए और वो जितने साल से मतलब जैन धर्म और विज्ञान पे कार्य कर रहे हैं और जितना उन्होंने पुस्तकें लिखी है और एडिटोरियल वो बोर्ड के मेंबर रहे हैं बहुत से मतलब वॉल्यूम्स के, और जैन एकेडमी ऑफ स्कॉलर है उसको जो उन्होंने आगे बढ़ाया है, उन सबको देखते हुए उनको ये सम्मान दिया गया है. तो मैं जो उनको बधाई देना चाहता हूँ और शुभकामनाएं व्यक्त करना चाहता हूँ कि वो भविष्य में भी थैंक यू सर पथ पर आगे बढ़े और अपने विश्व को अपने ज्ञान से लाभान्वित करें. तो मैं सबको कहूंगा कि एक बार आप उनको है जो बधाई दे दें और शुभकामना दे दें. बहुत बहुत बधाई. थैंक यू सर. थैंक यू. So now I will start with the formal introduction of this course. Introduction to this Pragyapana Sutra. In Jain tradition, Agmas are the most sacred and authentic texts to know the ontological truths, religion, and spirituality. The Agmas are divided into two broader categories, Anga and Upanga. Anga is that which is spoken by Tirthankar Mahavir and written by the chief disciples known as Gandharas, while Upanga is that which is written by the learned Acharya, especially by the experts of Purva literature. The scriptures written before Anga and very vast. There are 12 Angas and 12 Upangas. Upangas are the complementary and supplementary texts to know the subject matter of the Angas. Hence, each Upanga has some connection with one of the 12 Angas. Pragyapana Sutra comes under the category of Upanga. It is a complementary text to the fourth Anga, Samayanga Sutra. Looking at the very systematic explanation of all the fundamental principles of Jainism, Pragyapana Sutra can be said as the compendium of Jainism. It is a very detailed and profound scripture of Jainism. It is the great source book to know physics and metaphysics in Jain view.
To study Pragyapana Sutra means to study entire course of Jain literature. The text is divided into 36 chapters. Each chapter is focused on one of the fundamental doctrines of Jainism. Discussion and deliberation on the doctrines among the learned scholars and scientists of Jain Academy of Scholars would bridge the gap between scientific study and intuitive knowledge and come up with a holistic or inclusive theories to live a happy, healthy, harmonious, progressive, and peaceful life and world at large. Now, after introducing the sutra, I will just give a brief introduction of our great Guru, Swami Chaitanya Pragyaji. Professor, she is professor now, and she is visiting professor at Florida International University, Miami, Florida, USA. She was formerly head Department of Genealogy and Comparative Religion and Philosophy at Jain Vishwa Bharati Institute, Ladno. She is founding director of Bhagwan Mahavir International Research Center, Jain Vishwa Bharati Institute, Ladno, and her birthplace details are as follows. She was born in Jabua, Madhya Pradesh in 1967. Father is late Sri Mangalji Kotaria and mother is Mrs. Shanta Kotaria. She is seventh among four brothers and four sisters in her family. She took Jain Diksha and initiated by His Holiness Acharya Mahapragyaji in the Indian presence of Acharya Tulsi in 1986 at Rajnagar, Rajasthan. Currently, she is senior disciple of Acharya Sri Mahashamanji, the 11th Acharya of Jain Shwetambar Terapanthi tradition. Areas of specialization: Jainism, comparative religion, comparative philosophy, meditation and non-violence, science of living, Sanskrit and Prakrit languages. Since 1986, she has been practicing Jain nun and is working in the field of education. Her teaching, research and publications are mainly based on Jain philosophy and science. For academic and religious discourses, she has visited USA, London, Korea, Greek, Indonesia, Belgium, Germany, Hong Kong, Bangkok, China, Dubai, and Nepal. She organized several national and international workshops, seminars, and conferences in India and abroad. She obtained her higher secondary education in arts from Madhya Pradesh, India, received her BA in philosophy, English literature, and Sanskrit from Ajmer University, Rajasthan, India. She got MA in Jainism and comparative religion and philosophy from Jain Vishwa Bharati University, Ladno, Rajasthan, India in 1992. Awarded PhD on philosophical and scientific study of a Jain canon Bhagavati Sutra in 1997. The second edition of which is published by the title Scientific Vision of Lord Mahavir from Jain Vishwa Bharati, Ladno in 2020. Recently, she edited books Jainism in Modern Times 2015, Scientific Perspectives of Jainism 2017, and Jain Philosophy, A Scientific Approach to Reality 2018, and Jainism on Modern Issues 2020 from JVBI Ladno. He published almost 35 research articles on Jain philosophy, religion, ethics, logic, and spirituality in various research journals and course books. Recently, she is working at Florida International University, Miami, USA, for promoting Jain studies and research in the Western academia. She has also worked at FIU during 2010 to 2013 for 3 years and at Ghent University of Belgium during 2016 to 2017 for 2 years.
She has also been the editor of the newsletter of Jain Education and Research Foundation, Miami, USA from 2010 to 2013. She has been the founding director of Bhagwan Mahavir International Research Center from 2014 to 2017 and has been working for the development of scientific and social innovative studies and research in the field of Jainism. Since 2011, she has engaged in various major research projects like development of mathematical thoughts in Jainism and translation of Jain scriptures and their commentaries. She also engaged in editing of the books like Jain Philosophy, Science and Culture and Anekant, a philosophy of peaceful coexistence and harmonious living. She has presented Jainism in World Congress of Philosophy held in Korea in 2008, in Greek in 2013, and in China in 2018. She has worked as visiting professor at Ghent University in Belgium from 2016 to 2017 and working at Florida International University since 2010 to 2013 and 2019 onwards. That is currently also she is associated with this university. She has been nominated as the member of Indian Council of Philosophical Research by Ministry of Human Resources Development, Government of India during 2016 to 2018. On May 29, 2021, Florida International University, Miami, USA gave her second International Conference on Science and Jain Philosophy Award for the outstanding services and making ICSJP 2021 a grand success. That is, she organized a conference, international conference on consciousness, science and Jainism, whose main theme was the consciousness. Then online publications, her online publications are available on this Amazon, and so one can have a look at that. And I just want to say that some personal experiences which I had. Most surprising thing for me is that she is a BA graduate in arts and this non-scientific subjects. But I am totally surprised. I mean, the brilliance and the depth with which she is understanding science also. Being a non-science person, she is understood and she will ask very sharp questions, and her grasping of science subjects is remarkable, absolutely remarkable. And I just don't know how it is possible. So that is a big thing which I expect that it will be reflected in this series of lectures also. So that is, I am very happy. She is my guide also. She is my guru also. I am doing a project under her, which was given by Indian Council of Philosophical Research on Consciousness. So thanks a lot to her, and I say Vandan to her, and I now invite her to start her presentation. Sorry to interrupt. Before we start, please all participants are requested to write their name. Names and phone number also, if possible, in chat. Now they can write it separately. I mean, can Yes. go on writing. So let somebody start. So I am starting my lecture by paying homage to all the Tirthankars of Jain tradition and also all the great acharyas of Jain tradition. Namo Arahanta, Namo Siddha, Namo Ayariya, Namo Vachaya, Namo Loi Sapasahu, Aiso Panchanamukaro, Savvapavanasano, Mangalanam cha Savvesim, Padhamam Havai Mangalam.
सो आज के इस नई लेक्चर सीरीज जो कि जैन आगम पर आधारित और जैन एकेडमी ऑफ स्कॉलर्स के द्वारा ये प्रारंभ की जा रही है, मैं इसके लिए सबसे पहले आयोजकों का धन्यवाद करती हूँ। प्रोफेसर नरेंद्र भंडारी जी, प्रोफेसर सुरेंद्र पोखरना जी और उनकी टीम, जिन्होंने इस लेक्चर सीरीज के लिए प्लान किया और एक नई शुरुआत की है। तो मैं इसके लिए आप सबका विशेष धन्यवाद करती हूँ। आज के इस लेक्चर को हम शुरू कर रहे हैं और उसके लिए हमें थोड़ा सा ये बैकग्राउंड के रूप में समझना है कि जैन धर्म में ज्ञान के 5 प्रकार माने गए हैं: मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान और केवल ज्ञान। इसमें 5 ज्ञानों में 4 ज्ञान को स्वार्थी कहा जाता है। स्वार्थी यानी स्वयं जो जानने वाला है उसी को उसका बेनिफिट मिलता है, उनसे कम्युनिकेशन नहीं होता है। किंतु एक श्रुत ज्ञान जो है वो कम्युनिकेट करने की पावर भी रखता है। इसलिए श्रुत ज्ञान का सब ज्ञानों में केवल ज्ञान का अपना महत्व तो है ही है, किंतु श्रुत ज्ञान इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि इसमें हम कोई भी बात जो हमारे अनुभव में आती है या हमारे एक्सपेरिमेंट के या स्टडी के दौरान हमें कुछ नए तथ्य जो भी मिलते हैं, हम उसे कम्युनिकेट भी कर सकते हैं ताकि वर्ल्ड भी उससे बेनिफिटेड होता है। तो ये श्रुत ज्ञान का महात्म्य है। और श्रुत शब्द जो है जैन परंपरा में यूं बहुत वाइडर सेंस में भी लिया जाता है कि जो भी ज्ञान आपको शब्द के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से होता है, वो सब कुछ श्रुत ज्ञान है। परंतु श्रुत यहाँ पर अभी हम पर्टिकुलरली श्रुत को आगम कहा जाता है। आगम एक पर्यायवाची शब्द है श्रुत का। तो श्रुत मीन्स आगम। जिस तरह से अन्य धर्मों में, विशेष रूप से हम हिंदू धर्म के सेक्रेट टेक्स्ट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उनके सेक्रेट टेक्स्ट वेद कहलाते हैं। बुद्धिस्ट के सेक्रेट टेक्स्ट पिटक कहलाते हैं। उसी तरह से जैन धर्म के जो सेक्रेट ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, उनको आगम कहा जाता है। इनका नाम आगम इसलिए रखा गया है कि इसमें जिन तत्वों का विवेचन किया गया है वो बहुत ही व्यापक दृष्टि से किया गया है। तो आज शब्द व्यापकता के अर्थ में है कि चारों तरफ से विचार किया गया है। केवल ट्रांसेंडेंटल या केवल एम्पेरिकल एस्पेक्ट को ही टच नहीं किया गया है, बल्कि इन दोनों एस्पेक्ट और इनकी भी बहुत डिटेल में जाने का प्रयास किया गया है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो जैन आगमों में जिस तरह का ज्ञान है उसे हम एक प्रकार से ट्रांसेंडेंटल साइंस कह सकते हैं। आप सभी साइंस एकेडमी से जुड़े हुए हैं, तो ये जैनिज्म जैन एकेडमी का मूल पर्पस है कि हम किस तरह से जैन सिद्धांतों को साइंटिफिक बेस पर एस्टैब्लिश कर सके। तो हमें ये समझना है कि जैन आगमों में इतना गहरा, इतना सूक्ष्म तत्वों का विवेचन जिस रूप में किया गया है वो शायद दुर्लभ है किसी परंपरा के ग्रंथों में। और इतनी स्पष्टता के साथ, इतनी सर्टेनिटी के साथ, कहीं कोई डाउट की बात नहीं है। पूरा क्लियर और डिस्टिंक्ट रूप में उस चीज को देखा गया है और उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। तो हम ये देखेंगे कि श्रुत ज्ञान, इसीलिए श्रुत ज्ञान का महत्व केवल ज्ञान के बराबर सा माना गया है। यद्यपि मेरी दृष्टि में केवल ज्ञान से जिस तरह से सब कुछ चीजें जानी देखी जा सकती है, परंतु उस ज्ञान की द्वारा जो कुछ जाना और देखा जाता है वो सब कुछ अभिव्यक्त नहीं होता है। इस दृष्टि से जो कुछ अभिव्यक्त होता है वो है श्रुत ज्ञान, परंतु जो अनभिव्यक्त है, जिसको कहा नहीं जा सका है, वो भी श्रुत केवल ज्ञान में तो आता ही है। तो जिन भद्रगणिक क्षमाश्रवण ने एक ग्रंथ लिखा है जो बहुत ही प्रसिद्ध है जैन परंपरा का और बहुत ही गूढ़ और दार्शनिक फिलोसॉफिकल टेक्स्ट है, जिसका नाम है विशेषावश्यक भाष्य। उसमें उन्होंने एक बात कही है कि पदार्थ अनंत है, अनंत है। जानने वाला केवल ज्ञानी उनको सब कुछ जान सकता है, किंतु जानने के बावजूद जो उनको बताया जा सकता है वो प्रज्ञापन भाव कहलाते हैं, है ना। प्रज्ञापन जिनको बताया जा सकता है, किंतु उनका लाइफ भी इतना बड़ा नहीं होता है कि वो सब जो उन्होंने जाना और जो बताया जा सकता है वो सब कुछ उन्होंने कह दिया है।
वो इसलिए कहते हैं कि प्रज्ञापित जो भाव, प्रज्ञापक भाव जो होते हैं उनमें भी आलापक यानी उस कहे जाने वाले भाव तो उसका भी अनंतवा हिस्सा होता है। तो आप ये समझ लीजिए कि पदार्थ जगत तो बहुत विशाल है, इसमें बहुत सारे ऐसे तत्व हैं और उनके स्वरूप की गहराई में अगर आप जाएंगे तो बहुत विशाल ज्ञान होगा उस सबको जान लेने पर, परंतु उस ज्ञान को भी अभिव्यक्त करने में, जिसको प्रज्ञापनीय भाव कहते हैं, जिन्हें अभिव्यक्त किया जा सकता है, वो भी अनंत है। उसकी भी कंपैरिजन में जो बताया जा रहा वो भी उसका अनंतवा भाग है। कहने का मतलब है कि बहुत कुछ, बहुत कम कहा जा सका है, जितना कहा जा सकता था उसका भी अनंतवा हिस्सा कहा गया है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो श्रुत ज्ञान भी अपने आप में बहुत लिमिटेड है। तो केवल ज्ञान और श्रुत ज्ञान में यद्यपि कहा जाता है कि श्रुत केवली और एक केवल ज्ञानी दोनों तरह के व्यक्ति होते हैं, जिन्होंने 14 पूर्वों को अच्छी तरह से समझ लिया, उनकी गहराई में चले गए और 11 अंगों का पूरी तरह से सर्वांगीण जिन्होंने अध्ययन कर लिया है, तो उसको श्रुत केवली की उपमा दी जाती है, उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है एज ए श्रुत केवली। और वो इसलिए कहा गया कि उन्होंने एक तरह से, केवल ज्ञानी ने जिस तरह से अपने साक्षात ज्ञान से जो कुछ जाना देखा, उसी तरह से वो शास्त्र के माध्यम से सब कुछ जान और देख रहे हैं। देख तो नहीं पा रहे बट जान पा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि इसलिए उनको शुद्ध केवली की कैटेगरी में रखा गया और उनको नाम के आगे केवली शब्द का प्रयोग किया गया है। पर फिर भी हमें ये समझना चाहिए कि केवल ज्ञानी भी सब कुछ कह नहीं पाए हैं, जितना वो कह सकते थे उसका अनंतवा हिस्सा वो कह पाए हैं, और वो ही शास्त्रों में लिखा हुआ है और उसी को पढ़ने वाला शुद्ध केवली कहलाता है। तो वो शुद्ध केवली की भी अपनी बहुत लिमिटेशन है इन कंपैरिजन टू केवल ज्ञानी। अब हम जो बात कर रहे हैं कि आगम के संदर्भ में, तो थोड़ा सा मैं ओवरव्यू देना चाहती हूँ कि आगम कितने हैं। हमारे जैन धर्म में वर्तमान में 2 मुख्य परंपराएं हैं, श्वेतांबर परंपरा और दिगंबर परंपरा। श्वेतांबर परंपरा की क्या मान्यता है, दिगंबर परंपरा की क्या मान्यता है और कितने प्रकार के आगम है, थोड़ा सा आपकी दृष्टि में आ जाएगा तो आपको पता चलेगा कि कितना विशाल साहित्य वर्तमान में हमारे पास में ओरिजिनल ग्रंथों के रूप में उपलब्ध है, जिस पर विद्वानों को पढ़ने की और उस काम करने की बहुत आवश्यकता है। तो मैं प्रेजेंटेशन अपना शेयर कर रही हूँ। Please, everybody except the speaker, please mute yourself. Lot of disturbance is coming, please. तो ये शेयर हो रही है मेरी स्क्रीन? Yes. हाँ जी। अच्छा, तो हम आज प्रज्ञापना सूत्र की चर्चा करने जा रहे हैं, परंतु प्रज्ञापना सूत्र पर हम थोड़ा सा आए उससे पहले हम थोड़ा सा आगम के बारे में जानकारी कर ले कि जैन परंपरा में आगम का कितने हैं, किस रूप में हैं, क्या उनके पर्टिकुलर नाम है। बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे बट जस्ट थोड़ा सा ओवरव्यू की तरह से। तो मैं सबसे पहले अपने 3 गुरु जिनसे मुझे ये ज्ञान मिला है और जिनके शास्त्रों को के आगमों के अनुवाद को पढ़ करके ही मैं जो कुछ जानती हूँ, वो बहुत कुछ नहीं जानती हूँ, परंतु जो भी लिमिटेड मेरा नॉलेज है आगमों के संदर्भ में, वो आचार्य तुलसी, आचार्य महाप्रज्ञ और आचार्य महाश्रमण वर्तमान में है। इन 3 गुरुओं की कृपा से मैंने आगमों का अध्ययन किया है और इन्होंने इनके सानिध्य में भी किया है, ये खुद भी मुझे पढ़ाए हैं। सो मेरा ये सौभाग्य रहा है और मैंने उन्हीं से ये जो ज्ञान लिया है आपके साथ में मैं उसको ही साझा कर रही हूँ। तो इसलिए अब हम ये देखेंगे कि ये जो हमारे पास में आगम है, सबसे पहले ये समझना है कि आगम की 2 मेन कैटेगरी है, पूर्व और अंग आगम। पूर्व साहित्य जिसके अंतर्गत 14 प्रकार के ग्रंथ थे और जिसमें बहुत विशाल ज्ञान राशि थी, वो वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। और अंग आगम में 11 प्रकार के अंग आते हैं, जिनको कि आगम, मूल आगम कहा जाता है।
और मूल आगम उन्हीं को कहा जाता है जो भगवान महावीर की साक्षात वाणी हो, उनका ही उपदेश हो, जिसमें वो अंग आगम कहलाते हैं। उनकी रचना, उनके ही मुख्य जो डिसाइपल होते हैं जिन्हें गणधर कहा जाता है, उनके द्वारा वो ग्रंथ लिखे जाते हैं। तीर्थंकर उपदेश देते हैं, विस्तार से विवेचन करते हैं किसी भी तत्व का, और उसको संक्षिप्त रूप में लिखने का काम गणधर करते हैं। तो गणधर उनके मुख्य डिसाइपल होते हैं, चीफ डिसाइपल होते हैं। और उसके बाद में कुछ और आगम साहित्य लिखा गया जो विशेष रूप से 14 पूर्वधर या 10 पूर्वधर या 9 पूर्वधर से कुछ अधिक नॉलेज रखने वाले जो साधु हुए हैं, आचार्य हुए हैं, आचार्य भगवंत हुए हैं, उन लोगों ने वो साहित्य लिखा है जिसको कि आगम की कैटेगरी में लेते हैं। तो वो उपांग साहित्य के अंतर्गत विशेष रूप से आता है, उसे अंग साहित्य के अंतर्गत नहीं लिया जाता है, क्योंकि वो साक्षात तीर्थंकरों की वाणी नहीं है, वो आचार्यों की वाणी है जिनको पूर्वों का ज्ञान था। और विशेष रूप से 9.5 से अधिक यानी 9.25 पूर्व तक का जिनको ज्ञान होता है, उसी की वाणी को आगम की कैटेगरी में लिया जाता है। अगर 9.5 पूर्व का भी ज्ञान है तो उसको आगम की कैटेगरी में नहीं लिया जाता है। तो 9.25 पूर्व से ऊपर का जिसको नॉलेज होता है केवल ज्ञान तक, उनके वाणी को आगम की उपमा दी जाती है, उनका साहित्य आगम की कैटेगरी में माना जाता है। तो अब मैं थोड़ा सा आपको आगमों के बारे में बता रही हूँ कि ये मोटा मोटी 2 अभी वर्तमान में जो आगमों के डिवीजन हमें मिलते हैं, तो पूर्व साहित्य चूंकि लुप्त हो चुका है और वर्तमान में जो साहित्य हमें उपलब्ध हो रहा है उसमें 2 तरह के आगम आपको देखने को मिलते हैं। एक है अंग प्रविष्ट और एक है अंग बाह्य। तो अंग प्रविष्ट जैसे मैंने आपसे बताया कि ये गणधरों ने लिखे हैं ये ग्रंथ, और भगवान महावीर का साक्षात उपदेश इसमें निहित है। अंग बाह्य जो होते हैं वो विशेष रूप से पूर्वधरों के लिखे हुए साहित्य आगम है। 10.5 पौने 10 पूर्व से अधिक जिन पूर्वों का जिनको ज्ञान था, या अवधि ज्ञानी थे या मन ज्ञानी थे, ऐसे आचार्यों के द्वारा लिखे हुए ग्रंथों को अंग बाह्य की कैटेगरी में लिया गया है। तो ये अंग बाह्य में भी 2 तरह के ग्रंथ माने गए, आगम माने गए हैं। एक तो आवश्यक सूत्र कहलाता है जिसमें सामायिक का उपदेश है, 24 तीर्थंकरों की स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण, काय, सर्ग, प्रत्याख्यान, ये सारे विषयों का जिसमें डिस्कशन किया गया है। आवश्यक व्यतिरिक्त यानी इसके अलावा अन्य विषयों का जो विवेचन किया गया है वो भी 2 कैटेगरी में आते हैं, कालिक और उत्कालिक। कालिक को कहने का मतलब है कि ये पर्टिकुलर टाइम में ही पढ़े जा सकते हैं, हर टाइम आप इसे नहीं पढ़ सकते हो। किंतु उत्कालिक वो ग्रंथ होते हैं जो अस्वाध्याय काल जिसे कहा जाता है, यानी पर्टिकुलर जो एक टाइम पीरियड होता है जिस समय अच्छे ग्रंथों का या कुछ धार्मिक क्रिया उस समय नहीं की जाती है स्पेशल, वो अशुभ टाइम है, उसको छोड़ करके आप 24 घंटे में कभी भी इन आगमों का अध्ययन कर सकते हैं। अब अंग आगमों में आप देखेंगे कि 12 प्रकार के अंग आगम कहलाते, अंग प्रविष्ट कहलाते। उसमें 12वां आगम जो आपको दिखाई दे रहा है वो दृष्टिवाद है। दृष्टिवाद ये वर्तमान में 12 में से 11 उपलब्ध है श्वेतांबर साहित्य के परंपरा में, और ये 12वां जो दृष्टिवाद अंग है दिगंबर, मेरी आवाज सुनी जाएगी ना? दिगंबर परंपरा के मान्यता के हिसाब से कि कुछ अंश जो आचार्य धरसेन को स्मृति में था, तो उन्होंने उसके आधार पर 12वें अंग के कुछ अंश के आधार पर षटखंडागम आदि की रचना की है। और इस दृष्टि से देखा जाए तो 12वें अंग का कुछ अंश अगर हमें समझना है, देखना है, तो दिगंबर परंपरा में उसका साहित्य हमारे पास में उपलब्ध है, बट ये अंग आगम हमारे पास उपलब्ध नहीं है। ये बहुत विशाल अंग आगम था जो वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। तो इसी के बारे में कहा जाता है कि ये दृष्टिवाद के 5 खंड हैं, परिकर्म, सूत्र, पूर्वगत, अनुयोग और चूलिका। ये पूर्वगत के अंतर्गत ये 14 पूर्व आते हैं। उसके अलावा ये सूत्र के अंतर्गत इतने प्रकार के सूत्र आते हैं। अनुयोग में मूल, प्रथमानुयोग और गंडिकानुयोग। तो आप ये गंडिकानुयोग में देख रहे हैं कि 63 शला का पुरुष माने जाते हैं। हर युग में 63 जो है हिस्टोरिकल पर्सोनेज होते हैं जो अलग प्रकार से मतलब जो समाज को भी दिशा देते हैं, धर्म को भी दिशा देते हैं। तो इस तरह के जो महान व्यक्तित्व होते हैं इतिहास में, उनको 63 शला का पुरुष कहा जाता है, जिसमें कि सबसे प्रथम तीर्थंकर होते हैं
उनसे पहले कुलकर आते हैं, पर वो बड़े नहीं होते। तीर्थंकर सबसे बड़ी 63 शलाका पुरुषों में कुलकर को नहीं माना जाता है, तीर्थंकरों को और चक्रवर्ती और बलदेव, वासुदेव और प्रतिवासुदेव, उनको 63 शलाका पुरुषों में लिया जाता है। पर इसके अंतर्गत यहाँ पर आप देखेंगे कि इस महान पुरुषों का, उनका इतिहास, उनका वंश आदि का वर्णन जो है इस गंडिकानुयोग में मिलता है। चूलिका ग्रंथ होते हैं जो आज की भाषा में हम जिन्हें अपेंडिक्स कहते हैं, इन्हें कुछ अंश आपका मेन टेक्स्ट में कवर नहीं किया है तो आप उसको अपेंडिक्स में देते हैं, तो उस तरह के चूलिका ग्रंथ माने गए हैं। और ये चूलिका ग्रंथ, इसमें भी 4 प्रकार के इस तरह के ग्रंथ देखने को मिलेंगे, जिसमें अलग अलग नंबर में चूलिकाएं लिखी गई है। और परिक्रम के अंतर्गत ये है सिद्ध श्रेणी का, मनुष्य श्रेणी का, पुष्ट श्रेणी का, अवगाढ़ श्रेणी का, उपसंपद श्रेणी का, विप्रवन श्रेणी का और अच्युताच्युत श्रेणी का। तो इसमें भी कई तरह के विषयों का विवेचन किया गया है, जो यहाँ पर आपको मोटा मोटी दिया गया है। दिगंबर परंपरा के अनुसार आगमों का जो वर्गीकरण किया गया है वो इस तरह से है। उन्होंने भी अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य के रूप में माना है, किंतु यहाँ अंग प्रविष्ट के अंतर्गत जो आगम माने गए हैं उसमें आप ये देख रहे हैं करीबन 12 अंग आगम यहाँ भी माने गए हैं। और अंग बाह्य के अंतर्गत ये इस तरह के साहित्य को लिया गया है। और दृष्टिवाद में इसी तरह से परिक्रम सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्वगत चूलिका, तो इसमें कहीं कोई डिफरेंस नहीं दिखाई देगा आपको। अब बात ये है कि वर्तमान में जो आगम उपलब्ध है दिगंबर परंपरा के अनुसार ये है कि आगम वर्तमान में नहीं उपलब्ध हैं। श्वेतांबर परंपरा की मान्यता के अनुसार ये है कि वर्तमान में 11 अंग उपलब्ध हैं। यद्यपि वो पूर्ण रूप में उपलब्ध नहीं है, ये बात सही है। और बहुत कुछ साहित्य हमारा लुप्त हो चुका है, समय के साथ उनकी सुरक्षा नहीं की जा सकी है। कोई भी कारण हो सकता है, पॉलिटिकल कारण भी होते हैं, ज्योग्राफिकल कारण भी होते हैं, साधु साधुओं की अपनी लिमिटेशन होती है कि वो जो ग्रंथों को लिखते हैं वो कभी कभी गृहस्थों को दे देते हैं और गृहस्थ फिर उनका केयर नहीं करता है तो भी लॉस्ट हो जाता है। कभी कभी कुछ हम गृहस्थों को, हमने जानकारी से पता चला कि कुछ लोग अपने घर में साहित्य के लिए जगह नहीं है तो ऐसा करके वो पानी में बहा देते हैं। तो ऐसे बहुत सारा साहित्य किसी भी कारण से लुप्त हो चुका है। तो हमारे पास वर्तमान में उपलब्ध है वो मेरी दृष्टि में 25% भी है तो बहुत बड़ी बात है। बाकी 75% लिटरेचर अब तक लॉस्ट हो चुका है। फिर भी जैन साहित्य इन हिंदुइज्म और बुद्धिज्म की कंपैरिजन में काफी कुछ सुरक्षित है। आगम विच्छेद का क्रम का मतलब है कि आगम किसे कहा जाता है। तो पहले तो ये है कि भगवान तीर्थंकर जब विद्यमान होते हैं तो एक्चुअल में तो उन्हीं का नाम आगम होता है, जिन्हें आप आज की भाषा में समझे तो आगम पुरुष है, उन्हीं को आगम कहा जाता है। किंतु उनकी एब्सेंस में उन्होंने जो कुछ कहा उसके आधार पर जो साहित्य लिखा गया उसको, ग्रंथ को भी आगम कहने की परंपरा है। ये दोनों तरीके हैं समझने के। तो कभी कभी जब आगम लुप्त हो गए ऐसा जो कहा जाता है तो इसका मतलब है कि आगम को जानने वाले जो हमारे तीर्थंकर थे, श्रुत केवली थे, 10 पूर्वधर थे, आगमों एकादश अंग के धारक थे या 4 अंग आदि आगमों के धारक थे, तो वो व्यक्तित्व जो है वो समाप्त हो चुके हैं। इनसे उनका या तो निर्माण हो गया है या वो अब धरती पर हमारे बीच में नहीं है। तो ये आगम के अंग आगम और इस उपांग के बारे में थोड़ा सा मैंने ओवरव्यू दिया है। बट अब ये देखना है कि वर्तमान में जो आगम की परंपरा है, जो भी हमारे वर्तमान के जो संप्रदाय हैं उसमें क्या मत है। तो आगमों की संख्या के विषय में कौन से आगम किस परंपरा को मान्य है उस हिसाब से नंबर में डिफरेंस है। दिगंबर परंपरा 84 आगम की परंपरा को मानती है, 84 आगमों को ऑथेंटिक मानती है। मूर्ति पूजक ट्रेडिशन में 45 आगमों को ऑथेंटिक माना जाता है और स्थानकवासी और तेरापंथी ट्रेडिशन में 32 आगमों को ऑथेंटिक माना जाता है। ये एक नंबर का डिफरेंस भी आपको थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। एक बात जो विशेष हमें समझनी है कि ये जो 32 आगम तेरापंथ और स्थानकवासी ट्रेडिशन में ऑथेंटिक माने जाते हैं, ये 32 आगम ऐसे हैं जो कि सभी परंपराओं को समान रूप से मान्य है। तो ये कॉमन है सारी ट्रेडिशन में कि ये 32 को तो सभी एक्सेप्ट करते ही है। उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा आगम जो है वो अलग अलग परंपराओं में मान्य किए गए हैं उनकी अपनी परंपरा के हिसाब से। तो इतना कह करके मैं अपनी बात को संपन्न करूंगी
कि आगमों के बारे में हमने थोड़ा सा ओवरव्यू लिया कि किस तरह से आगमों की रचना की गई है और किस तरह के आगम हैं। तो अंग बाह्य के अंतर्गत 12 उपांग भी माने जाते हैं। उसके अलावा 4 मूल, 4 छेद और एक आवश्यक सूत्र माना जाता है। सो उपांग जो है वो कहा जाता है कि ये एक तरह से कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री टेक्स्ट है अंग आगमों की। अर्थात अंग आगमों को समझना है विस्तार से तो आपको उपांग साहित्य देखना होगा। तो प्रज्ञापना सूत्र ये है, ये चौथा आगम जिसको समवायांग कहा जाता है। और मेरी दृष्टि में ये भगवती सूत्र का एक तरह से कॉम्प्लीमेंट्री टेक्स्ट है। अगर भगवती सूत्र में कुछ बातें जो शॉर्ट में कही गई है उसको आपको विस्तार से और व्यवस्थित रूप में एक सिस्टमैटिक तरीके से प्रोफाउंड रूप में देखना हो तो आपको प्रज्ञापना सूत्र देखना चाहिए। तो वर्तमान के जितने भी आगम हैं उन आगमों में सर्वाधिक व्यवस्थित रूप में और बहुत डिटेल और बहुत ही सिस्टमैटिक ऑर्डर में अगर कोई आगम देखने को आपको चाहिए जिसमें कि एक आगम को अगर आप पढ़ ले तो सारी जैन परंपरा मोस्टली समझ में आ जाए, तो वो या सारे जैन के सिद्धांत समझ में आ जाए, तो वो है प्रज्ञापना सूत्र। इसमें बहुत सिस्टमैटिक तरीके से हर चीज को प्रेजेंट किया गया है। इसमें 36 चैप्टर्स हैं और इसके रचनाकार हैं कालकाचार्य, जिनको श्यामाचार्य भी कहते हैं। तो ये कालकाचार्य कहा जाता है कि भगवान महावीर के निर्वाण के लगभग 900 वर्ष बाद का इनका समय माना जाता है ऑलमोस्ट। तो देवर्षि गणिक क्षमाश्रमण जो अंतिम आगमों को लिखने वाले मतलब एडिट करने वाले संपादक के रूप में कहा जाता है श्वेतांबर परंपरा के अनुसार, देवर्षि गणिक क्षमाश्रमण जो कि 5वीं शताब्दी में, ईसा के 5वीं शताब्दी में जिनका समय माना जाता है, उन्होंने इन आगमों को बहुत व्यवस्थित किया था और एडिट करके आज वर्तमान में हम जो कुछ देख रहे हैं आगमों को, वो देवर्षि गणिक क्षमाश्रमण के द्वारा संपादित है, एडिटेड। तो उसमें उन्होंने जो है उनसे पहले ये श्यामाचार्य हुए 5th सेंचुरी से पहले के, जिन्होंने ये प्रज्ञापना सूत्र की रचना की। और उन्होंने एक बात इस प्रज्ञापना सूत्र के विषय में कही है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने कहा कि ये द्वादशांग की जो दृष्टिवाद है, 12वां जो अंग है जो कि बहुत विशाल ज्ञान जिसमें निहित था, उसका ये एक निश्चंद है, निश्चंद है निचोड़ है, सार है, एसेंस है। इट इज द एसेंस ऑफ ऑल द जैन स्क्रिप्चर्स। ये प्रज्ञापना सूत्र को उन्होंने इस तरह से रिकॉग्नाइज किया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और तीर्थंकरों ने जो कुछ कहा है मैं उसी को इस ग्रंथ के माध्यम से प्रेजेंट कर रहा हूँ। ऐसा उन्होंने मंगलाचरण की गाथा में कहा है कि मैं कुछ नई बात नहीं कह रहा हूँ, जो तीर्थंकरों ने कहा है मैं जस्ट उसी को रिपीट कर रहा हूँ। सो उन्होंने इस ग्रंथ को बहुत ही अच्छे और बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से लिखा है। और अब हम ये देखेंगे कि इसके 36 अध्ययन है और 36 अध्ययन में से पहला अध्ययन का नाम स्वयं प्रज्ञापना है। ग्रंथ का नाम भी इस फर्स्ट चैप्टर के जो टाइटल है उसी के आधार पर ग्रंथ का नाम रखा गया। सो ये प्रज्ञापना शब्द का मीनिंग क्या होता है, इस विषय में अगर हम थोड़ा सा देखें तो कहा जाता है कि जिसमें जीव और अजीव, जैन दृष्टि में सारे विश्व में के सभी तत्वों का अगर आप अध्ययन करें तो उन सभी तत्वों को आप 2 कैटेगरी में डाल सकते हो। ये ब्रॉडर क्लासिफिकेशन या कैटेगराइजेशन है जैन दृष्टि से सारे विश्व के तत्वों का, और वो है जीव और अजीव। तो ये 2 तत्वों के बारे में जब आप गहराई से अध्ययन करते हैं और हर चीज, इसकी हर माइन्यूट चीज आपको समझ में आने लग जाती है, या इस तरीके से अगर उसका प्रतिपादन किया जाता है कि जिससे कि जो कुछ कहा जा रहा है वो सामने वाले को समझ में आ रहा है, तो उसे प्रज्ञापना कहा जाता है। तो प्रज्ञापना का मतलब सिंपल रूप में ये हो गया कि जीव और अजीव तत्वों का गहराई से और विस्तार से विवेचन करने वाला ग्रंथ। तो यहाँ पर हम फर्स्ट चैप्टर को देख रहे हैं कि फर्स्ट चैप्टर में प्रज्ञापना की बात की गई है और प्रज्ञापना के संदर्भ में कहा गया है कि भगवान महावीर ने 2 प्रकार के तत्वों का निरूपण किया है। सारे विश्व को 2 तत्वों में वर्गीकृत किया है और वो 2 तत्व हैं जीव और अजीव। डिस्क्रिप्शन ऑफ लिविंग एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ नॉन लिविंग, ये 2 मूल तत्व है।
हिम प्रज्ञा जी, हिम। तो ये जीव और अजीव जो दो तत्व हैं, इसमें से जीव तत्व के बारे में हम विस्तार से विवेचन करेंगे और अजीव तत्व को हम समझेंगे। परंतु मेरा एक शब्द कहना है कि अजीव किसे कहते हैं। दो तरह के टर्म है, जड़ और अजीव। जैनों ने अजीव शब्द का प्रयोग किया है, जड़ शब्द का प्रयोग नहीं किया है। जड़ का मतलब होता है फिजिकल, किंतु अजीव का मतलब फिजिकल नहीं है। इसमें फिजिकल और नॉन फिजिकल दोनों तरह के एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं। इसलिए अजीव टर्म इन कंपैरिजन टू फिजिकल इज वेरी ब्रॉडर टर्म, और वो हम जब इसके विस्तार में जाएंगे तो हमें और अच्छी तरह से समझ में आएगा कि नॉन लिविंग कहने का मतलब है कि इसमें केवल हम फिजिकल चीजों को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, बल्कि नॉन फिजिकल और नॉन लिविंग, वो दोनों नॉन लिविंग भी है और नॉन फिजिकल भी है। ऐसे एलिमेंट्स भी नॉन लिविंग एलिमेंट्स के अंतर्गत आते हैं। तो वो फिजिकल हो ये जरूरी नहीं है, कुछ ऐसे तत्व भी हैं जो कि नॉन लिविंग तो है किंतु साथ साथ में नॉन फिजिकल है। इसलिए फिजिकल और नॉन फिजिकल ये दो कैटेगरी इसके अंतर्गत इंक्लूड हो जाती है। तो अब जीव की परिभाषा के बारे में भंडारी जन साहब का विशेष प्रश्न रहता है कि जीव किसको कहा जाए। तो इसमें आगमों का ये विचार है, टीकाओं का, उत्तरवर्ती ग्रंथों का, वर्तमान में जहां जो भी जैन परंपरा है जीव को जो भी जिस रूप में समझती है, यही परिभाषा है कि जीवंती प्राणान धारयंती इति जीवा। जीव उसे कहा जाता है जो 10 प्राणों के शक्ति के आधार पर जीता। और प्राण जैन परंपरा में दो प्रकार के, द्रव्य प्राण और भाव प्राण। यानी कुछ प्राण ऐसे होते हैं जो शरीर से जुड़े हुए हैं प्राण शक्तियां, और कुछ प्राण शक्तियां आत्मा के साथ जुड़ी हुई है। तो जो द्रव्य प्राण है वो 10 तरह के माने जाते हैं। 5 इंद्रियों से जुड़े हुए प्राण, मन वचन और कर्म से जुड़ा हुआ प्राण, आयुष्य प्राण और श्वासोच्छ्वास प्राण। ये 10 तरह के प्राण विशेष रूप से उन जीवों में होते हैं जिनका शरीर के साथ संबंध होता है। किंतु जो शुद्ध आत्मा है उनमें भी प्राण शक्तियां होती है। वो प्राण शक्तियां ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य, ये 4 रूपों में भाव प्राण के नाम से जानी जाती है। तो जीव मात्र में प्राण शक्ति जरूर होगी। अगर वो लिविंग है तो उसके साथ में विद बॉडी है तो उसके साथ में 10 और तरह के प्राण जुड़ जाते हैं। और अगर वो लिबरेटेड सोल है, विदाउट बॉडी है, तो उनमें ज्ञान, दर्शन, तो कहने का मतलब है कॉन्शियसनेस इज द रियल प्राण शक्ति, वाइटल फोर्स इन द लिविंग बीइंग। तो जो भी जीव होगा उसमें निश्चित रूप से कॉन्शियसनेस होगी, ये उसकी मूल पहचान है। तो ये जीव किसे कहते हैं, इसकी आपको सिंपल जो डेफिनेशन मिलती है आगमों में और उत्तरवर्ती ग्रंथों में, वो मैंने आपसे बताई है। और अजीव किसे कहते हैं, विच इज डिवाइड ऑफ वाइटलिटीज, कॉन्शियसनेस एंड कॉग्निटिव बिहेवियर। एक वर्ड यहाँ मिसिंग है। सो ये उसे अजीव कहते हैं जिसमें न तो चेतना होती है, न इस तरह की प्राण शक्तियां होती है, न उसमें किसी तरह का कॉग्निटिव बिहेवियर आपको देखने को मिलता है। चूंकि प्रज्ञापना सूत्र में इन जीव और अजीव तत्व को लेकर के इन फर्स्ट चैप्टर में बहुत विस्तार से चीजों की चर्चा की गई है, तो मैं यहाँ पर वो क्लासिफिकेशन विदाउट टचिंग द ओरिजिनल टेक्स्ट, आई एम जस्ट गिविंग ब्रीफिंग ऑल द टेक्स्ट। तो यहाँ पर अजीव अब हमारे सामने है कि ये प्रज्ञापना जो प्रथम अध्ययन है उसके अंदर जीव तत्व का विवेचन किया गया है बहुत विस्तार से, और अजीव तत्व का विवेचन किया गया है। और जीव और अजीव में अजीव तत्व का विवेचन थोड़ा शॉर्ट में फिनिश हो जाता है, इसलिए पहले अजीव तत्व का प्रतिपादन किया गया है और फिर जीव तत्व का डिस्कशन किया गया है। तो मैं अजीव तत्व के संदर्भ में जो क्लासिफिकेशन प्रज्ञापना सूत्र में किया गया उसे यहाँ प्रेजेंट कर रही हूँ। तो उसमें है कि अजीव तत्व के का मतलब है नॉन लिविंग, और नॉन लिविंग के अंदर 2 तरह के एलिमेंट्स आते हैं, फिजिकल और नॉन फिजिकल। एक को रूपी कहा जाता है, दूसरे को अरूपी कहा जाता है। जिसमें रूप होता है मीन्स जिसमें कलर हो, टच हो, टेस्ट हो, स्मेल हो, उसे रूपी कहा जाता है। जस्ट ये नहीं कि कलर है तो रूपी हो गया,
उसमें चारों क्वालिटीज होती है तो उसे रूपी या फिजिकल एलिमेंट कहा जाता है, और जिनमें ये चारों क्वालिटीज नहीं होती है उसे अरूपी, नॉन फिजिकल, नॉन लिविंग एलिमेंट्स कहा जाता है। अब है कि अरूपी के अंतर्गत 4 तरह के तत्व आते हैं, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश और काल। धर्मास्तिकाय को मीडियम ऑफ मोशन कहते हैं, अधर्मास्तिकाय को मीडियम ऑफ रेस्ट कहते हैं, आकाश को स्पेस कहते हैं, टाइम कहते हैं। So these 4 elements or substances, or you can say extended realities, which are known as astikai in Jain tradition. So these are the homogeneous entities and all are non-living, devoid of consciousness and also physicality. ये 4 अरूपी द्रव्य हैं। और धर्मास्तिकाय और धर्मास्तिकाय और आकाश, काल तो चूंकि मोमेंटरी होता है, it has just one movement and not no other parts, so it is just to say that it has no other divisions than the present moment. दूसरा है कि इधर जो अरूपी द्रव्य है उसमें धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय, ये 4 अस्तिकाय द्रव्य कहलाते हैं। अस्तिकाय इसलिए कहे जाते हैं कि ये एक्सटेंडेड रियलिटी है, ये स्पेस में बहुत स्प्रेड करती है, सो दे आर नॉट जस्ट कन्फाइंड टू वन स्पेस पॉइंट, दे आर स्प्रेड थ्रू आउट द स्पेस, cosmic space, or space itself is not only confined to cosmic space but it is beyond also. तो ये चूंकि इनके बहुत सारे प्रदेश हैं और ये एक तरह से होमोजीनियस, अनडिवाइडेबल और इनडिविजिबल एलिमेंट्स हैं, तो इन्हें अरूपी अस्तिकाय द्रव्य कहा जाता है। और इन द्रव्यों के बारे में इनका डिवीजन अगर हम पॉसिबल है तो वो जस्ट आप कल्पना से कर सकते हो उनका डिवीजन, एक्चुअल में इनका कोई डिवीजन पॉसिबल नहीं है। तो ये मूल में तो स्कंध रूप में है, एग्रीगेट के रूप में है, और इनका डिवीजन अगर कोई कल्पना से करे तो उसे देश और प्रदेश कह सकते हो। एक परमाणु से अधिक हिस्सा जो अगर होता है, कुछ बड़ा हिस्सा होता है जिसमें एक से अधिक परमाणु कंबाइंड हो, तो उन्हें उसे देश कहा जाता है। और अगर एक सिंगल एटम जितना पार्ट आप डिस्कस कर रहे हैं किसी इन तीनों एलिमेंट्स का, तो वो प्रदेश कहलाता है। तो ये प्रदेश एक प्रकार से एटम की साइज का पार्ट होता है, किंतु ये कनेक्टेड होता है अपने मूल एग्रीगेट से, ये कभी भी डिस्कनेक्ट नहीं होता। तो इन तीनों द्रव्यों के बारे में और एक सिंगल जीव के बारे में, ये 4 ऐसे द्रव्य हैं जिनके प्रदेश कभी सेपरेट होते नहीं हैं, इसलिए उनके जो एटम की साइज के जो भी पार्ट हैं, आत्मा का हो, चाहे धर्मास्तिकाय का हो, चाहे धर्मास्तिकाय का हो, चाहे आकाश का हो, उसे प्रदेश ही आप कह सकते हैं, उसको एटम नहीं कह सकते, परमाणु नहीं कह सकते। परमाणु डिस्कनेक्ट हो सकता है किंतु प्रदेश कभी डिस्कनेक्ट नहीं होता है। इसी तरह से इनके एक परमाणु से अधिक जो बड़े हिस्से होते हैं उसको आप देश कह सकते हो, और वो भी एक तरह से काल्पनिक होता है, इमेजिनरी होता है। एक्चुअल में देयर इज नो सच डिवीजन इन दीज 4 एलिमेंट्स। अब ये है कि इन तीनों द्रव्यों को फर्दर अगर आपको समझना है तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और गुण की दृष्टि से इनका अलग अलग क्वालिटीज है। उस क्वालिटीज को समझने से इनके स्वरूप को आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो द्रव्य की दृष्टि से कहा जाता है कि धर्मास्तिकाय पूरे विश्व में एक ही अकेला तत्व है, इसके जैसा और कोई तत्व नहीं है, और ये एक तरह से थ्रू आउट कॉस्मिक स्पेस स्प्रेड करता है। इन्हें पूरे स्पेस में, कॉस्मिक स्पेस में स्प्रेड किया हुआ है। हर जगह पदार्थ की गति इसकी सहायता से हो सकती है। वैक्यूम में भी परमाणु एक स्थान से दूसरे स्थान मूव कर सकता है इसकी सपोर्ट से। इसी तरह से अधर्मास्तिकाय की सपोर्ट से कोई भी पदार्थ स्थिर रह सकता है, और उसको बाहरी कोई एक्सटर्नल सपोर्ट मिले या ना मिले, अधर्मास्तिकाय का सपोर्ट हमेशा उस पदार्थ को उपलब्ध रहता है। तो पूरे स्पेस में ये भी स्प्रेड करता है। और काल तो अपने आप में एक टाइम है, प्रॉपर्टीज ऑफ Sanita calling. How are you, Robin? I'm good. How are you? Doing great, thank you. So this is in reference, I spoke to you yesterday, and I remember last time we spoke, we had some credit balance in the account. बीच बीच में आवाज कहाँ से आ रही है? Sure. हेलो।
हेलो, हाँ म्यूट कर दिया है सबको। चलिए, भाव भाव का मतलब है कि पदार्थ में निरंतर परिणमन होता रहता है, जिसे साइंस की भाषा में म्यूटेशन कहा जाता है। और ग्रोथ चेंजेस भी होते रहते हैं, जो दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिक्स होने से जो परिवर्तन होते हैं, तो उन्हें एक तरह से व्यंजन पर्याय कहा जाता है। और पदार्थ में अपने आप में जो परिवर्तन होता रहता है टाइम के साथ, हर मोमेंट में जो चेंजेस होते रहते हैं, उसे अर्थ पर्याय कहते हैं। ये दोनों तरह के परिवर्तन हर पदार्थ में निरंतर होते रहते हैं। और चूंकि पदार्थ अनंत उसे अनादि अनंत है, इटर्नल है, सो उस पदार्थ में परिवर्तन की कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि पदार्थ स्वयं अनंत काल तक रहने वाला है, अनंत काल से है, तो उसमें अनंत प्रकार के परिवर्तन समय समय पर होते रहते हैं। दूसरे पदार्थों के योग से भी होते रहते हैं और स्वयं में भी होते रहते हैं। स्वयं में तो प्रतिक्षण होते ही होते हैं। तो एक पदार्थ में अनंत प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं, उसको शो करने के लिए भाव शब्द का प्रयोग किया गया है। और भाव अनंत होते हैं। द्रव्य की दृष्टि से पदार्थ तो एक ही है, किंतु परिवर्तन की दृष्टि से वो अनंत रूप में देखा जा सकता है। इसी तरह से गुण है, क्वालिटी। हर पदार्थ की अपनी एक स्पेसिफिक क्वालिटी होती है। कुछ ऐसी क्वालिटी है जिन्हें जेनरिक क्वालिटी कह सकते हैं, कॉमन क्वालिटीज कह सकते हैं। दे आर अवेलेबल इन ऑल अदर सब्सटेंसेस। बट कुछ ऐसी क्वालिटीज होती हैं जो कि स्पेसिफिक होती है और जो पर्टिकुलर सब्सटेंस के साथ ही होती है, उसी में होती है, और इसी के कारण से उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस माना जाता है। हमने सारे विश्व में अनंत पदार्थ होने के बावजूद भी क्यों 6 तत्वों को या 5 पदार्थों को ही रियल माना है, बाकी सब उसके उनके बाय प्रोडक्ट कहे जाते हैं, किंतु ओरिजिनल जो तत्व है वो 5 ही है, जिसमें धर्म, अधर्म, आकाश का पुद्गल और जीव आते हैं। तो इनको इंडिपेंडेंट माना गया है, और ये इससे कम तो आप रिड्यूस कर ही नहीं सकते हैं। तो ये 5 क्यों अलग अलग माने गए, इसका कारण है कि उनमें कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी है जो उसी में पाई जाती और किसी तत्व में नहीं पाई जाती है। तो इसके कारण से उनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस माना गया। धर्मास्तिकाय की स्पेशलिटी ये है कि ये मीडियम ऑफ मोशन है। ये हम पदार्थ, जीव और अजीव जितने जड़ पदार्थ हैं जो भी गति कर रहे हैं इस विश्व में, उन सबको ये सपोर्ट कर सकता है। किंतु ये कैपेसिटी और किसी तत्व में नहीं है, ना अधर्मास्तिकाय में है, ना आकाश में है, ना जीव में है, ना पुद्गल में है। सो ये इसी कारण से धर्मास्तिकाय का अस्तित्व जो है इन सब द्रव्यों से स्वतंत्र हो जाता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है। उसकी स्पेशलिटी जो है उसको अलग से रिकॉग्नाइज करने के लिए बाध्य करती है। दूसरी है अधर्मास्तिकाय। इसी तरह से अधर्मास्तिकाय की स्पेशलिटी ये है कि मीडियम ऑफ रेस्ट है, ये गुण और किसी पदार्थ में नहीं पाया जाता है। आकाश की स्पेशलिटी ये है कि एकोमोडेट कर सकता है हर चीज को, चाहे जीव है चाहे अजीव है, तो उन सभी पदार्थों को ये एकोमोडेट करने की पावर रखता है। ये कैपेसिटी और किसी और पदार्थ में नहीं है। इसी तरह से जीव में ये कैपेसिटी होती है कि उसमें कॉन्शियसनेस होती है। सो कॉन्शियसनेस इज कन्फाइंड ओनली टू लिविंग बीइंग। इट कैन नॉट बी अवेलेबल इन एनी मटेरियल एंटिटीज अकॉर्डिंग टू जैन फिलोसॉफी। तो ये जीव में ही ये गुण पाया जाता है कि उसमें ही जानने की शक्ति होती है, वही नॉलेज कर सकता है, वही एक्सपीरियंस कर सकता है, उसी में डिजायर्स होते हैं, उसी में कॉग्निटिव बिहेवियर होते हैं। तो ये सारी क्वालिटीज जीव में ही पाई जाती है, अन्य किसी भी द्रव्य में वो क्षमता नहीं है। इसलिए जीव को अलग से रिकॉग्नाइज किया गया है। और फिर जो है पुद्गल तत्व है। पुद्गल में स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, ये 4 मेन क्वालिटीज पाई जाती है। ये केवल पुद्गल में ही देखने को मिलेगी, ना धर्म में मिलेगी, ना अधर्म में मिलेगी, ना आकाश में, ना जीव में। तो इसलिए पुद्गल का अपना एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस प्रूव हो जाता है। तो ये इन सभी को आप जब मिलाएंगे तो कहा जाता है कि अजीव के 30 प्रकार हो जाते हैं। 30 प्रकार, वो किस रूप में? 3 प्रकार, जो देश, ये स्कंध, देश, प्रदेश, हर द्रव्य के 3-3 प्रकार हैं, और एक काल तत्व, ऐसा टोटल मिलाए तो ये 10 प्रकार के द्रव्य हो गए। और इनकी भी जो है द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अगर इनके स्वरूप को समझेंगे तो 4 into 5 ऐसा करके 20 इनके प्रकार हो जाते हैं। चारों द्रव्यों को अगर आप द्रव्य क्षेत्र काल और भाव और गुण की दृष्टि से एक्सप्लेन करें तो इनके ये 20 प्रकार हो जाते हैं। इस हिसाब से 20 और 10 मिलाने से 30 प्रकार
अजीव द्रव्य के हो जाते हैं, वो भी अरूपी अजीव के। बीच में स्टक होता है थोड़ा सा। अब हमारे ही रूपी द्रव्य पर फिजिकल जो एलिमेंट्स हैं जितने भी, साइंस की भाषा में 92 या 108 जैसा मैंने सुना था, जाना था, उस हिसाब से इतने जो भी एलिमेंट्स माने जाते हैं, जैन दृष्टि में वो सभी पुद्गल की कैटेगरी में आते हैं, सभी मटेरियल हैं, इस वजह से उनको सबको मैटर की कैटेगरी में लिया जाता है। तो मैटर अपने आप में एक पदार्थ है जिसके हजारों वेरिएशंस हो सकते हैं, हजारों ग्रेड्स हो सकते हैं, हजारों प्रकार हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि रूपी जो है वो अजीव के कितने प्रकार माने गए। तो इसके 4 प्रकार माने गए हैं, स्कंध, देश, प्रदेश और परमाणु। स्कंध यानी पूरा एग्रीगेट कोई भी है, अगर सभी प्रकार की मटेरियल एंटिटीज को आप कंसीडर करें एक एलिमेंट के रूप में, तो वो स्कंध कहलाता है। उसका कुछ आप मैटर का कुछ हिस्सा आपने लिया है, कोई एक प्रकार का एलिमेंट आपके हाथ में है, तो वो देश के अंतर्गत आएगा। अगर परमाणु जितना आप पार्ट डिस्कस कर रहे हैं किसी भी फिजिकल एंटिटी का, तो वो प्रदेश कहलाएगा, और यदि वो पार्ट सेपरेट हो गया है तो उसे परमाणु कहा जाएगा। सो ये आप प्रदेश और परमाणु का डिफरेंस देख लीजिए कि जब तक कनेक्टेड रहता है तब तक वो प्रदेश है, और डिस्कनेक्ट होने पर वो परमाणु की कैटेगरी में आता है। और चूंकि ये भौतिक पदार्थ का ही एक स्पेशलिटी है, गुण है कि वो अलग भी हो सकता है, टूट भी सकता है और जुड़ भी सकता है। तो इंटीग्रेशन एंड डिसइंटीग्रेशन की क्वालिटीज इज फाउंड ओनली इन द मटेरियल एंटिटीज, एंड दैट्स व्हाई परमाणु, the category of परमाणु is possible only in the case of matter and not in any in the case of other elements. तो ये परमाणु की जो कैटेगरी है, इस कारण से यहाँ आपको फिजिकल एंटिटीज के 4 प्रकार बताए गए हैं। इसमें भी अब ये है कि चूंकि हर भौतिक पदार्थ में कोई ना कोई कलर होगा, कोई ना कोई स्मेल होगी, कोई ना कोई प्रकार का टेस्ट होगा, कोई किसी प्रकार का उसमें टच क्वालिटी होगी, और संस्थान यानी उसका कोई ना कोई प्रकार का शेप होगा। वो शेप बिल्कुल डिफाइंड शेप भी हो सकता है, अनडिफाइंड शेप भी हो सकता है। तो ये 5 तरह की जो क्वालिटीज है वो हर मटेरियल एंटिटीज में आपको देखने को मिलेगी। यद्यपि परमाणु जो है वो 5th जो कैटेगरी है जिसको संस्थान कहते हैं, उसको वो क्वालिटी उसमें नहीं देखी जाती है। बाकी ये 4 क्वालिटीज उसमें भी आपको बराबर मिलेगी। उसमें कोई ना कोई वर्ण होता है, कोई ना गंध होता है, रस या स्पर्श होता ही है। तो ये 4 क्वालिटीज को जब आप इसका मल्टीप्लाई करते हैं कि किसी परमाणु में जो कलर है, मान लीजिए काला कलर है, उसमें गंध दोनों प्रकार की हो सकती है, उसमें टेस्ट 5 प्रकार के हो सकते हैं, उसमें स्पर्श 8 प्रकार के हो सकते हैं, और संस्थान 5 प्रकार के हो सकते हैं। उस हिसाब से अगर आप मल्टीप्लाई करें, कॉम्बिनेशन करें, इनका ये परमुटेशन है और इनका कॉम्बिनेशन करें, तो 560 टाइप के नॉन लिविंग और फिजिकल एलिमेंट्स आप यूनिवर्स में देख सकते हैं। कलर डिफरेंस के आधार पर, स्मेल के डिफरेंस के आधार पर, टेस्ट के डिफरेंस के आधार पर, टच क्वालिटी के डिफरेंस के आधार पर, और अलग अलग शेप होने के कारण से 560 टाइप के ये ब्रॉडर कैटेगरी है। यूं तो हर चीज, हर कैटेगरी के अंदर इनफाइनाइट ग्रेडेशंस पॉसिबल है, इसलिए उनका तो कोई लिमिट है ही नहीं, वो काउंट की नहीं जा सकती है। बट जो ब्रॉडर कैटेगराइजेशन किया गया है आगमों को, 560 टाइप्स के फिजिकल जो है एलिमेंट्स माने गए हैं इन कलर प्रॉपर्टीज के डिफरेंस के आधार पर, इनके वे कॉम्बिनेशन से जो अलग अलग तरह की चीजें बनती है। मुझे थोड़ा टाइम आप बताएंगे किस टाइम मुझे फिनिश करना है? मैं निवेदन कर रहा था कि अजीब पर आज समाप्त करते हैं तो अच्छा है, क्योंकि ये जीव का तो बहुत गूढ़ विषय है। आप अगली बार ले लीजिए। और ये जो गणित आपने बताई है, इसमें भी वी हैव टू गो अगेन एंड मेक श्योर दैट वी अंडरस्टैंड ऑल द numbers you have given.
ओके तो मेरा निवेदन है कि अजीब पर आज समाप्त कर दिया जाए और हम अगली बार ये जीव का लेंगे जो बहुत कठिन विषय है। तो फिर यहीं पे स्टॉप करूं या वो आपको नंबर समझना है? नहीं, वो नंबर एक रिवीजन में नेक्स्ट टाइम वहीं से शुरू कर लेंगे। अभी ठीक। हम कुछ प्रश्न हो तो किसी के प्रश्न हो तो वो पूछ सकता है। प्लीज रेज योर हैंड एंड आस्क इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। आज का बहुत जनरल इंट्रोडक्शन था एंड यू गॉट द ओवरव्यू ऑफ आगम्स, और जीव और अजीव ये दो भेद हमको बताए गए। तो यहाँ से सब ब्रह्मांड शुरू होता है। तो किसी के कोई प्रश्न है? किसी ने हाथ रेज किया है, प्लीज। विवान wants to ask some सिद्ध एंड question. विवान, हाँ बोलिए सिद्ध एंड विवान। सर मुझे एक प्रश्न था कि प्रज्ञापना आपने जो चैप्टर का नाम है उसका मतलब क्या होता है प्रज्ञापना का? प्रज्ञापना का मतलब है टू एक्सप्लेन, टू डिस्क्राइब थिंग्स in totality or in a very comprehensive way. Okay, thank you. Yes. वो जैसा सामने जी ने पहले बताया, कुछ चीजें हम बता सकते हैं, कुछ नहीं बता सकते हैं। तो ये जो बता सकने वाली चीजें हैं उनको प्रज्ञापना कहते हैं, और जो नहीं बता सकते वो बहुत हैं, वो अपने डायरेक्ट ज्ञान से ही प्राप्त होती है, ऐसा मेरे समझ में आया। बता सकने वाले में भी जो बताई जाती है उसको आलाप्य कहते हैं, यानी आलापनीय भाव कहते हैं, और जो बताई जा सकती थी बट बताई नहीं गई है वो प्रज्ञापनीय भाव थे। उनमें से उनका जो प्रज्ञापनीय है उसमें से भी जो कहा गया है वो आलापनीय भाव कहलाते हैं, यानी जिन्हें बताया जा सका है। तो थोड़ा सा प्रज्ञापन और आलापन, ये दो तरह के वर्ड्स भी आते हैं। जिनको एक्चुअल में कहा जा चुका है वो आलापनीय भाव आलाप्य कहलाते हैं, आलापक कहलाते हैं। और जिनको बताया जा सकता था बट पूरा बताया नहीं जा चुका है, तो जो बताए जा सकते थे उनको लिए प्रज्ञापनीय शब्द आता है। यस, जसवंत भाई। मुझे मालूम नहीं, मैं जरा ये सॉरी मेरा कैमरा ऑन नहीं हो सकता है। ये पर्ण वर्ण यानी प्रज्ञ और वर्णा दो शब्द से जो बना हुआ है, और का जो हमें पढ़ाया गया था, प्रज्ञ का मतलब होता है जो हमारे प्रज्ञावान पुरुष है, यानी कि हमारे जो अरिहंत भगवंत है, तीर्थंकर है, देवाधिदेव है। और वर्णा का वर्ण यानी अक्षर सूत्र, ऐसा हमको पढ़ाया गया था। उसके बारे में अगर आप कुछ बता सके तो, बिकॉज दिस इज द कॉमन डेफिनेशन which we have learned when we studied प्रज्ञापना सूत्र। नहीं, आपने सही बताया, बट वो क्या है कि ये एक लेटर जो है डिस्क्रिप्शन मीनिंग किया गया है। एक ही शब्द को आप अलग अलग तरीके से ग्रामेटिकली डिवाइड भी कर सकते हो। तो प्रज्ञा यानी तीर्थंकरों के द्वारा, ज्ञानी जनों के द्वारा, पूर्वधरों के द्वारा, तो प्रज्ञा उनको प्रज्ञावान पुरुषों के द्वारा जो बताया गया है उसको प्रज्ञापना कहते हैं। वर्ण यानी अक्षर होता ही है, तो श्रुत को या अक्षर यानी आत्मा को भी कहा जाता है, आत्मा को भी अक्षर कहा जाता है, जिसमें आत्म तत्व का, जीव तत्व का विवेचन किया गया हो। और अक्षर मीन्स वर्ण। और वो अब यहाँ पे मैंने अभी स्थानकवासी ट्रेडिशन का एक ग्रंथ है जो नम्र मुनि महाराज के साध्वी जी ने संपादित किया, तो उन्होंने ये प्रज्ञा वर्ण शब्द भी उन्होंने दिया है प्रज्ञापना को स्प्लिट करने के लिए या एक्सप्लेन करने के लिए। तो वो एक ग्रामेटिकल आप एनालिसिस करके वो भी मीनिंग निकाल सकते हैं और वो भी फिट होता है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रज्ञावान पुरुषों के द्वारा जो कुछ बताया जा रहा है गया है और वो प्रवाह रूप में हम तक जो आ रहा है, तो वो भी अर्थ लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, और कोई प्रश्न है? किसी को और कोई प्रश्न है?
हाँ समनी जी, मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, दो एक्चुअली। एक बिल्कुल। मतलब बहुत क्लेरिफाई करना चाहिए, मतलब वो मेरे को मैं चाहता हूँ कि हाँ। आपने कहा कि जो फिजिकल है उसमें इंटीग्रेशन और डिसइंटीग्रेशन होता है, यस, और जो नॉन फिजिकल है उसमें इंटीग्रेशन डिसइंटीग्रेशन नहीं होता है। यस, बिल्कुल। ये बिल्कुल 100% सही है, मतलब दोनों में जो डिफरेंस है फिजिकल और नॉन फिजिकल में। यस, जितने भी नॉन फिजिकल आपको 5 जो तत्व बताए गए हैं, धर्मास्तिका, आकाश, जीव और पुद्गल, तो इन हाँ। 4 में तो डिवीजन होता ही नहीं, इंडिविजिबल है, अनडिवाइडेबल है, आप स्प्लिट कर ही नहीं सकते। इसीलिए पुद्गल को पुद्गल क्यों कहा गया कि पूर्ण गलन धर्मत्वात् पुद्गल, जिसमें पूर्ण यानी इंटीग्रेशन एंड गलन मीन्स डिसइंटीग्रेशन पॉसिबल है, उसी को पुद्गल कहा गया है। पुद्गल शब्द का मीनिंग ही यही है, जिसमें इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन पॉसिबल है, दैट इज पुद्गल, दैट इज मटेरियल एंटिटी, दैट इज फिजिकल। नॉन फिजिकल एलिमेंट्स अनडिवाइडेबल है, they cannot be split into pieces. जैसे टाइम है, मान लो टाइम है, तो Yes. टाइम के अपन डिवीजन करते हैं, सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, फिर इनको जोड़ते हैं तो मिनट हो जाता है जैसे। ये क्या तो आप इसको ये सारा इमेजिनरी, this is imaginary, this is not real. Real is one moment only, the present moment. और वैसे देखा जाए तो श्वेतांबर परंपरा के अनुसार काल का कोई स्वतंत्र अस्तित्व है ही नहीं। काल इज नॉट एन रियल एंटिटी, सेपरेट इंडिपेंडेंट एंटिटी, ठीक है ना। पदार्थों में जो प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन को मेजर करने की ये लैंग्वेज है। ठीक है ना। आप मैं प्रतिक्षण जो मेरे में हर क्षण जो परिवर्तन हो रहा, तो एक क्षण का जो परिवर्तन है उसको समय कहा गया है, उससे अधिक समय का जो परिवर्तन है उसको आगे की यूनिट्स बता दिया गया है। सो दीज टाइम यूनिट्स ऑल आर इमेजिनरी, दे आर मेंटल एंड नॉट रियली एग्जिस्टिंग। टाइम तो और ये कह सकते हैं को वो रिलेटिवली है, क्योंकि अपन वो जो नॉन फिजिकल है, टाइम है जैसे, उसको हम अनेकांत की दृष्टि से जो पुद्गल के मतलब रिलेटिवली देख रहे हैं, मतलब पुद्गल के हिसाब से, कि पुद्गल में वो ब्रेकिंग और होता है, तो उसके हिसाब से हम टाइम को भी डिवाइड किया है, ऐसा कह सकते हैं। इसीलिए टाइम को क्या है, जीव अजीव की पर्याय कहा है श्वेतांबर परंपरा में। ये जीव और अजीव की पर्याय है, जीव और अजीव को एक्सप्लेन करने का एक तरीका है। टाइम इज वन डायमेंशन टू एक्सप्लेन एनीथिंग एंड एवरीथिंग। इवन सिद्धों में भी टाइम डायमेंशन जो है उसके आधार पर डिवीजन किया गया है। उनमें और कोई तरह का डिफरेंस अगर नहीं है तो उनकी क्वांटिटीज तो सेम है, दे आर सेम, दे आर हैविंग इक्वल क्वालिटीज, प्रॉपर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, फिर भी उनमें टाइम डायमेंशन अप्लाई करता है। अच्छा टाइम। अच्छा, दूसरा प्रश्न, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद दूसरा ये है कि जो रिलेटिविटी थ्योरी के अंदर आइंस्टीन की रिलेटिविटी थ्योरी है, वो कहते हैं कि स्पेस और टाइम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, मतलब दोनों को कंबाइन कर दिया गया है, मतलब तो जैन धर्म के हिसाब से तो स्पेस और टाइम बिल्कुल अलग अलग है, मतलब तो कहीं ऐसा संदर्भ आता है कि जो रिलेटिविटी थ्योरी में स्पेस टाइम को कंबाइन किया हुआ है, वैसा ऐसा कुछ अनेकांतवाद के हिसाब से या कुछ इस पर्सपेक्टिव में ऐसा कुछ कंसेप्ट आता है क्या? देखिए, मैंने अभी आपसे ये कहा था कि टाइम तो हर चीज के साथ जुड़ा हुआ है, जीव के साथ भी जुड़ा हुआ है, अजीव के साथ भी जुड़ा हुआ है, आकाश स्पेस के साथ भी जुड़ा हुआ है। निश्चय काल आलोक में भी है। आलोक जो बियॉन्ड ट्रांसकॉस्मोस है, वहां पर और कोई चीज नहीं अप्लाई करती, बट टाइम वहां भी अप्लाई करता है। ओहो, अच्छा। निश्चय काल में और सिद्धों में भी टाइम अप्लाई करता है। तो मैंने आपसे कहा कि टाइम इज ए नेसेसरी डायमेंशन ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग एलिमेंट्स, बट इट इज नॉट इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट। Whenever you want to explain any living or non-living entity, you have to talk in temporal sense also. मेरा ये निवेदन होगा कि समय का जो है ये बहुत ही गूढ़ विषय है, इसको अपन अलग से लें तो कुछ समझ में आएगा। ये निश्चय काल और व्यवहार काल और फिजिकल टाइम एंड साइकोलॉजिकल टाइम, और देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ टाइम।
Yes. तो वी विल कवर दिस। आज समय बहुत हो गया है क्योंकि काफी समय इंट्रोडक्शन और हाँ, इनॉग्रेशन बहुत ही में लंबा चला गया। चौड़ा परिचय पोखरना साहब ने कहाँ से नहीं पर किया। हमारी ये लिमिटेशन है, आप में इतने वो इतना परिचय है तो हम लोगों को तो बताएं कि क्या है। मतलब आप और एक बात मैं ये कहना चाहिए, पोखरना साहब को आश्चर्य होता है कि मैं साइंस में इंटरेस्ट रखती हूँ या नॉलेज रखती हूँ या समझती हूँ, तो मैं एक्चुअल में साइंस की स्टूडेंट ही बनने वाली थी, बट जैन धर्म में बॉर्न एंड ब्रॉट अप है, तो जब मुझे पता चला कि वहाँ बायोलॉजी में वो मेंढक इंसेक्ट करना पड़ेगा, डाइसेक्ट करना पड़ेगा कुछ, सो मैंने कहा कि फिर मैं नहीं ले सकती सब्जेक्ट को, तो मैंने 9th में साइंस मुझे लेना था, मुझे आर्ट में जाना पड़ा। बट मैं समनी बनने के बाद में मैंने साइंस को बहुत पढ़ा और मैंने रिसर्च भी मैंने साइंस की लैंग्वेज साइंटिफिक दृष्टि से ही की थी। तो मैं फिजिकल साइंस को फिजिक्स को पढ़ती रहती हूँ, स्पेशली फिजिक्स से रिलेटेड चीजें पढ़ती रहती हूँ। तो मूल में तो मेरा साइंस ही लेने का था, बट उसके कारण से मैं नहीं ले पाई। पर साध्वी बनने के सबनी बनने के बाद में निरंतर साइंस से टच में रहती हूँ, और आप लोगों का फिर योग मिल गया मुझे से। आपका इतना ब्रॉड आपका ज्ञान है कि हम तो अथाह है, हमें तो अथाह लगता है। कुछ निश्चय नए के हिसाब से आप साइंटिस्ट हैं, निश्चय नए के हिसाब से साइंटिस्ट हैं, और व्यवहार नए के हिसाब से आप आर्ट के विद्यार्थी हैं। तो सर, कैन वी हैंड इट ओवर टू आशीष जी नाउ? यस। जसवंत भाई को प्रश्न है, थोड़ा सा एक प्रश्न, जसवंत भाई बॉम्बे से जुड़े हुए हैं। हाँ जसवंत भाई बोलिए सर। आप अनम्यूट करिए जसवंत भाई। हाँ, पुद्गल जो है, हाँ बोलिए सर। पुद्गल को, जीव को भी पुद्गल कहा गया है। भगवती जी सूत्र 8वें शतक में लास्ट क्वेश्चन जो है, सीधे जीव को भी पुद्गल कहा गया है, तो वो किस अपेक्षा से? तो पहली बात ये है कि जीव का शरीर के साथ, पुद्गलों के साथ बहुत रिलेशन है ना। इट इज वेरी क्लोजली एसोसिएटेड विद द मटेरियल वर्ल्ड ऑन फिजिकल एलिमेंट्स। तो एक कारण ये बनता है। दूसरा ये है कि पुद्गल शब्द जो है ना, उसका एक मीनिंग जीव भी है, और ये आप देखेंगे बुद्धिस्ट परंपरा में जीव के लिए पुद्गल शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो फिर हम लोग सामान्य ज्ञान में जीव और पुद्गल डिफरेंस करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। आप अब ये है ना कि थोड़ा सा अपने नॉलेज को ब्रॉड करना भी जरूरी है, कि एक ही वर्ड कभी कभी डिफरेंट टाइम में डिफरेंट मीनिंग में भी लिया जाता है, तो वो वर्ड उसके ऊपर अप्लाई। इस दृष्टि से आप ये सोचिए कि जीव का चूंकि पुद्गलों से बहुत निकट का संबंध है, शरीर के साथ तो है ही है, आप कर्मों के साथ तो है ही रिलेशन, और पुद्गलों का बहुत इफेक्ट जीवों के ऊपर होता है, इस वजह से उससे पुद्गल कहा भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ग्रामेटिकल एनालिसिस की बात है। और दूसरा है सिनोनिमस, यानी एक ही शब्द कई अर्थों में, अलग अलग अर्थों में प्रयोग किया जाता है, एक ही शब्द के एक ही मीनिंग नहीं होते हैं। तो ठीक है, इसीलिए जैन परंपरा ने उस शब्द का यूज करना कम बंद कर दिया एक तरह से। वो भगवती सूत्र में ही आपको मेंशन मिलता है। जनरली हम जीव ही बात करते हैं, हम जीव को पुद्गल कह करके नहीं बोलते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन होता है, कभी कभी टर्मिनोलॉजी के कारण से होता है। बट एक टर्म के कभी कभी दो विपरीत अर्थ भी होते हैं, उसको भी हमें समझना होगा। तो मेरा विचार है अगली बार हम क्वेश्चन आंसर के लिए थोड़ा ज्यादा समय रखेंगे। बिल्कुल। और आई थिंक वी हैड अ फैंटास्टिक बिगिनिंग। अशेषा जी, यू वांट टू से समथिंग और कंक्लूड इट? पूर्वी जी से मैं निवेदन करूंगी कि अगले सेशन का कुछ बताएं हम। पूर्वी जी। जी हाँ पूर्वी जी, नेक्स्ट सेशन के बारे में बताओ जी। अभी ये हमारा एवरी थर्सडे को रहेगा ये लेक्चर, और जिन लोगों को ज्वाइन है ना, यही लिंक आईडी रहेगी। तो अशेषा जी को या मेरे को आप मैसेज कर सकते हैं, किसी को प्रॉब्लम हुई है या कुछ डिटेल्स चाहिए तो। एवरी थर्सडे वी आर हैविंग दिस लेक्चर। चलिए ठीक है। तो अब मंगल पाठ ये थोड़ा सा मैं आपको एक सूचना दे देती हूँ। वैसे मेरी कई बार दी हुई है इस एकेडमी में
ये आप देखिए 143 स्टूडेंट्स ने ये साइंस एंड जैन फिलोसॉफी कोर्स ज्वाइन किया है। ये जैन एकेडमी के लिए बड़ी खुशी की बात है कि इतने लोग साइंस और जैनिज्म को समझना चाह रहे हैं। तो एकेडमी के लोगों को बहुत ही इसमें अब वो है कि प्लानिंग करने की जरूरत है कि हम किस किस तरह के और अच्छे नए कोर्सेस ऑफर कर सकते हैं। और लोगों का बड़ा इंटरेस्ट है। यहाँ के लगभग 100 करीबन, मतलब 150 के अराउंड जो है यूएस के लोग जुड़े हुए हैं। 100 अबाउट करीबन बाहर के अदर्स इंडिया से भी काफी लोग जुड़े हैं। तो इतने लोगों के नई जनरेशन में बड़ा क्रेज है। और यानी एडल्ट्स भी हैं तो आज वो यहाँ समझना चाहते हैं साइंस की लाइट में जैनिज्म को अच्छी तरह से। तो आप ये देखिए काफी अच्छा नंबर है और इसमें से कई रिसर्च के लिए मिल सकते हैं। तो एकेडमी के लिए एक बड़ा कहना चाहिए कि बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस कोर्स के माध्यम से कि हमें बहुत अच्छे कैंडिडेट इसमें मिल सकते हैं काम करने वाले। हाँ समरी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या ये कोर्स के लिए अभी हम ये ग्रुप पे भी मैसेज भेज सकते हैं? मैसेज भेज दीजिए। मैंने भेजा ही है वो जैन एकेडमी में वो फ्लायर भेजा ही है। हाँ, तो मैं आज फाइनल भेज देती हूँ, आप उसको भेज दीजिए। एकेडमी को भी जोड़ लेंगे, कोई बात नहीं। उसी के लिए हमारा है कि वो किसी तरह से जैन समाज में एक अवेयरनेस क्रिएट हो। और इतना टैलेंट है जैन समाज में, उसका उपयोग भी होना चाहिए कि वो कुछ नए इंटेलेक्चुअल इनपुट लेकर के आए, कुछ साइंटिफिक रिसर्च सामने लेके आए। So you can see these are the announcement of the Google class। और ये ओरिएंटेशन क्लास भी रखा है। सो ये सेम कोर्स मैंने भगवत यहाँ FIU से भी किया है, लॉन्च किया है। तो इस कोर्स का भी लिंक यहाँ दे रखा है, FIU का लिंक भी दे रखा है। JVBI से भी ये लॉन्च हो रहा है। सो उसका भी लिंक आ जाएगा। एंड ये उसको ज्वाइन करने वाले काफी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। 250 अराउंड जो है एप्लीकेशन आ चुकी है। अभी 140 के अराउंड ज्वाइन किया है क्लासेस में। हाँ, इसके साथ मैं आपको प्रार्थना करूंगी आप मंगल पाठ कीजिए। ओके, हाँ, ये मॉड्यूल है क्लास का। ये सारा वीकली क्लास, ये ऑनलाइन कोर्स है, कोई भी किसी भी समय पढ़ सुन सकता है। कच्छा दास साहब के लेक्चर और उनकी टेक्स्ट बुक को ही रखा है मैंने स्पेशली इस कोर्स में। तो कच्छा दास साहब चूंकि हमारे उपलब्ध हैं, इसलिए मैंने कहा कि आप अपने टेक्स्ट को किस तरह से कन्वे करना चाहते हैं, उसी के वीडियोस क्रिएट किए गए हैं और ये सब अपलोड हो चुके हैं। और लोग काफी अच्छे इंटरेस्ट से पढ़ रहे हैं, इनको वीडियोस को सुन रहे हैं। तो मैं कच्छा दास साहब को विशेष धन्यवाद देती हूँ। उन्हें बहुत शॉर्ट नोटिस में मुझे सारे लेक्चर्स के वीडियोस अवेलेबल करवाए, टेक्स्ट अवेलेबल करवाए। और जो कुछ भी छोटी मोटी मेरी नीड होती है तो बहुत ही टाइमली मुझे हर चीज गाइड भी करते हैं और अवेलेबल भी करवाते हैं। तो मैं उनको विशेष इस कोर्स के लिए धन्यवाद देती हूँ। अब भंडारी जी और पोखरना जी को भी अपने कुछ कोर्सेस लाने हैं। वंदन आपको, बहुत बहुत वंदन। आपकी आज्ञा का पालन होगा। तो सभी एकेडमिक स्कॉलर्स को मेरा रिक्वेस्ट है कि एक एक ऐसा कोर्स जिससे कि साइंस और जैनिज्म का कंसेप्ट कम से कम हमारी जैन कम्युनिटी और जो ग्लोबल कम्युनिटी है, इसके साथ में कई विदेश के, कई दूसरे धर्मों के, संप्रदायों के, यूनिवर्सिटीज के, देशों के लोग इस कोर्स को ले रहे हैं जैनिज्म को समझने के लिए। हाँ सब मंगल पाठ। मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहो मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारे लोकोत्तमा अरहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहो लोकोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमं चत्तारे शरणं प्रवच्चामि अरहन्ते शरणं प्रवच्चामि सिद्धे शरणं प्रवच्चामि साहो शरणं प्रवच्चामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं। तो सबको बहुत बहुत आभार करता हूँ। आभार तो शब्दों में नहीं कहा जा सकता, लेकिन आपने बहुत अच्छा शुरुआत की और हम आगे वी लुक फॉरवर्ड टू more depth as we go along। बहुत बहुत आभार। जोस्मी वंदामी। ये हमारे लंदन से हैं, नीता डॉक्टर हैं, लंदन के डॉक्टर हैं। तो बहुत ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस कोर्स को स्प्रेड करने में बड़ा अपना सहयोग कर रहे हैं। शी इज डॉक्टर, हाँ, नैना शाह, यस।
जय जिनेंद्र सभी को। जय जय वंदे नमः स्वामी। वंदामि।